चरणों विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर कै भाणै जो चलै तिस वड्याई वड्डी होए। हर का नाम ऊतम मन वसै मेट न सकै कोय। सतगुर कै भाणै जो चलै तिस वड्याई वड्डी होए। हर का नाम उत्तम मन वसै मेट न सकै कोय। कृपा करे जिसे अपनी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझै कोय। नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझै कोय। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन तीसरे पातशाह निमाणियां दे मान निथाणियां दे तान सतगुरु धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण किए हुए श्री ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 90 उपर सुभाएमान राग श्री राग की वार चों सतगुरु पातशाह जी ने उचारण किए हैं। इन्हां पवित्र बचनां राहीं धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बचन बख्शिश करते हैं उपदेश बख्शते हैं। आओ सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी कहते जेड़ा जीव गुरु दे भाणे विच चलदा सतगुर कै भाणै जो चलै तिस वड्याई वड्डी होए। भाणा हुंदा हुक्म मनना और जो गुरु दे भाणे अंदर रहिंदा है बेअंत शक्तियां प्राप्त करके भी चाहे वो शक्तियाँ संसारक है चाहे आत्मक है उन शक्तियां का हंकार नहीं करता प्रचार नहीं करता। निम्रता सहित पहले जीवन की न्याई वरतदा है संसार नाल दुनिया नाल। कोई अपनियां वडियाइयां का विखावा नहीं करता। उन्हां नूं इत्थे ते उत्थे दोही जहानी वड्डी वडियाई प्राप्त हुंदी है। जिस तरह सतगुरु रामदास महाराज जी तीजे पातशाह जी दे जवाई हुंदियां होइयां भी उन्होंने कदे हंकार कोई मान नहीं किया। जिस तरह जदों आए सन विआह होण तो पहलां सेवा करते सन गुरु घर नाल संबंध जुड़न तो बाद भी सेवा उवें चलती रही। ते सतगुरु अमरदास जी नूं वो भा गए
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਖੁਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਔਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੇ ਰਾਮੇ ਦੋਨਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥੜੇ ਢਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤ ਬਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤ ਬਚਨ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਝਣਾ। ਤੋ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹੋ ਹੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ 68 ਤੀਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਤਿਆਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਚਨਾ।
और पातशाह जी ने उस बौली साहब की आरंभता करवा दी। और हुण बौली साहब की पटाई होण लगी तो गुरु अमरदास जी नूं भाई गुरदास जी ने कहा सी, महाराज संगत तो बहुत आउंदी है गुरु घर, पर आपसी जान पछाण नहीं हैगी, कोई अगे आउंदा कोई पिछे आउंदा। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने फिर एक जोड़ मेला आरंभ किया, बई विसाखी ते सारे आओ, इकट्ठे होणगे। विसाखी का मेला कई दिन चलता है। तो सब तो पहला गुरु घर दे विसाखी जिहड़ी है गुरु घर विच गुरु अमरदास जी ने आरंभ की। और उस विसाखी दे जोड़ मेले ते सतगुरां ने संगतां दी आपसी में मेल मिलाप भी होए, जान पछाण भी होई, प्यार वधिया, आपसी प्यार भरातरी प्यार बन गया। तो बौली साहब का आरंभ करन दा मतलब है एक तो जात पात छूट छात नूं खत्म करना। क्योंकि ब्राह्मण कहते सी जे असी गंगा दे विच बैठ के इशनान कर रहे हैं ना, तो जिहड़ा शूद्र है वो जिधर पानी जा रहा उधर नहावे, जिधरों पानी आ रहा उधर ना नहावे, पानी खराब होंदा गंगा का। तो ये जात पात छूट छात नूं खत्म करने वास्ते सतगुरां ने एक बौली साहब तैयार करवाई, जिहदे विच सारियां नूं इशनान करन दा हुक्म दिता, ये भरम खत्म किया। और एक हुक्म दिता कि सारियां ने लंगर विच पट्टियां दे बह के प्रशादा छकना है, चाहे कोई सेवादार है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई जनता है। जिन्हें मैनू मिलना अज तो बाद पहला लंगर विच बह के गफ्फा छक के आवे, कहो सतनाम श्री। इत्थे भी जात पात की वंडी पई हुई सी। जब कोई वड्डे जग हुंदे, पहला लोग जग कहंदे सी, आपां गुरमत साह लंगर कहने आ, उन्हां जग्गां दे विच ब्राह्मणां दी पंगत मूहरे लाई जांदी अलग, क्योंकि ब्राह्मणां ने कर्मकांड बनाए सी, अपने आप नूं वड्डा कहंदे सी। इन्हां दी लैन मूहरे लाई जाती, पहला इन्हां नूं छकाया जाता, फिर छत्रियां दी, फिर वैश्यां दी, फिर पिछे जाके शूद्रां दी, जिन्हां नूं ये नीच कहंदे सी। वैसे बाबा नानक दा घर नीच नहीं कहंदा, ना कोई शूद्र हैगा, इन्हां दे बनाए हुए सी। भारती लोक नीच किवें बने, किताब लिखी है मुक्तसर दे वीर ने, मुक्तसर साहब का वो सिंह रहन वाला है, उसने एक किताब लिखती एक वड्डी कि भारती लोगों को नीच शूद्र बनाने का कारण है तो कौन है, ये देखो किताब नूं पढ़ के, कहो सतनाम श्री। गुरुआं ने ये चीज़ां खत्म कीतियां। तो बौली साहब की रचना करनी, एकत्र करके लंगर छकाउणा, भावें कि ब्राह्मणां नूं बड़ा उस वेले दुख आया, उन्होंने केस भी किया मौके दे राजे अकबर कोले, बई देखो जी ये जिहड़ा गुरु नानक की गद्दी का मालक है, तीजा गुरु, ये आपदी मर्जी कर लग पे, तो आपदी बाणी रचदे आ, आप ही बौली बनाती, आप ही इकट्ठे कह बह के लंगर छकाउंदे आ, ये तो सारा जात पात छूट छात खत्म करता जी। तो इस तरह गुरु प्यारो सतगुरां ने ये चीज़ां खत्म कीतियां ते ओह केस भी जित्तिया। भाई जेठा जी नूं भाव गुरु रामदास जी नूं ही भेजिया उहदा पैरवाई करने वास्ते। उन्हां समयां दे विच जदों ये बौली साहब की गुरु प्यारो रचना चल रही सी, उस वेले एक माई आउंदी आ सेवा करने वास्ते। बौली साहब की मिट्टी पटते हैं ना, सेवा चलती है कार सेवा, ये गुरु अमरदास जी के समय तो गुरु घर नाल जुड़ी हुई है, तो इसका नाम है माई सेवा। ये माई सेवा जिहड़ी सी गुरु प्यारिओ अगे लंबा समा गुरु अर्जन देव जी तक रही है, और आउंदी कित्थों सी पता, काबल तो। ते काबल कंधार कोई नेड़े तेड़े नहीं है,
रोजाना अमृत वेले जदों सेवा शुरू होंदी उदों हाजिर हो जाती, तो जदों समा समाप्त हुंदा तो उदों गायब हो जाती, अलोप हो जाती। ऐसी ये माई की टहल सेवा सी। तो एक दिन जदों हरमंदर साहब की सेवा चली सरोवर की, उदों भी ये माई सीगी गुरु अर्जन देव जी के समय। उस वेले भी ये माता आउंदी सी। कहंदे संगतां ने गुरु साहब नूं पुछया, महाराज एक माई आ, और वो माई जिहड़ी है अचानचक ही आ जाती आ ते अचानचक ही गुप्त हो जाती आ। चलदी चलदी कदे मिट्टी वाले खाली टोकरे नूं इदां हिलाउंदी आ, समझ नहीं आउंदी की गल आ। को सतनाम सी। गुरु साहब ने पुछया, मैं तो पता ही सीगा, संगतां नूं दस्सण वास्ते पुछया, माता जी तुसीं कित्थों आउणे हो? कहंदी जी तुहानूं पता ही आ। नहीं नहीं, ऐ संगतां पुछदियां। कहंदी जी मैं काबल तो आउणी आ। संगत हैरान भी, काबल तो 8 वजदे नूं हाजिर हो जाती है सेवा च। कहो सतनाम सी। तो फिर वापस उत्थे ही जाने हो? हथ ने कहने घरे जानी है जी। एक संगत पुछी दी आ, दिने तुसी आ टोकरा हिला के की करते हो? कहंदी जी मैं घरे बच्चे नूं छड्ड के आउणी आ, पींगे च पा आउणी आ, तो जो मैनू ऐ लगता बच्चा रोन लग पिया, मैं टोकरा हिला के वह पींगा हिला दिनी आ। देख ला किन्नी पावर है, हिसाब ला लो भी इत्थों टोकरा हिलाया, हवा दे नाल पींगा भी हिलाता। को सतनाम श्री। ते संगतां हैरान। इहनूं कहंदे है इन्नी पावर हुंदियां भी गुरु दे भाणे भी चलण वाला जिहड़ा उहनूं वडियाई मिलदी है। ते संगत हैरान भी महाराज इन्नी शक्ति। कहंदे ये शक्ति साडी संगत विच एक माता नहीं, इहो जिहियां 72 माइयां सी गुरु अर्जन देव जी दे कोल, गुरु अमरदास जी दे समय तो 72 बीबियां विच इन्नी पावर सी, ताकत सी। सेवा का यह फल है। इसे करके 22 मंजियां ते 72 पीढ़ियां नूं ये बख्शिश होई बई सिੱਖੀ का प्रचार करो। तुसी माइयां नूं भी हुक्म होया। इस करके पीढ़ियां तां कहा कि बीबी वास्ते पीढ़ी है तो मनुख वास्ते मंजी है, भाव एक दसन दे वास्ते है। तो बीबी जिहड़ी है इस तरह 72 बीबियां कोले इन्नी पावर सी। कहंदे जिस वेले उस माता ने दसिया ते सिख संगतां बिस्माद भी चलियां गईयां। गुरु पातशाह जी ने पूछया, फिर बेटा तू इन्नी दूरों किवें आउणी आ, ये पावर तैनूं किवें प्राप्त होई? वो कहंदी जी अपने पति की सेवा चों। को सतनाम श्री। बस पति दे हुक्म अंदर ते गुरु दे भाणे अंदर चलण वाला हमेशा ही इन्हां पावरां नूं प्राप्त कर सकदा। को सतनाम श्री। सतगुर कै भाणे जो चलै तिस वडियाई वड्डी होए, हर का नाम उत्तम मन वसै। जिन्हां दे हिरदे विच हरि दे नाम दा वासा हो गया, मेट न सकै कोई। उन्हां विच इन्नियां पावरां आ जांदियां कि उन्हां नूं कोई रोक नहीं सकदा। ते सतगुरु अर्जन देव महाराज दे समय भी वो माता सी माई सेवा, जिन्हां नूं सतगुरां ने वडियाई दित्ती कि वो सदा सदा लई अमर कर दित्ती। श्री अमृतसर साहिब दे एक बाजार का नाम बाजार माई सेवा रख के। कहो सतनाम श्री। उन्हां दा नाम हमेशा लिए अमर कर दिता। एक बाजार का नाम रखा गया बाजार माई सेवा। तो कहण तो भाव है सिख जदों गुरु दे भाणे भी चलदा है, उन्हां दे भाणे नूं सत करके मनदा है, हर का नाम उत्तम मन वसे। फिर गुरु कृपा करके उहदे हिरदे विच हरि दे नाम की जड़ ला दिंदा।
फिर हरि का नाम का पौधा वधदा फुलदा, इनू विराग दे भगती दे फल लगते है, नाम का रस मिलता है। फिर ਉਹਦੇ बारे कुछ कह ही नहीं सकते। बाबा नानक जी भी कह गए, मन्ने की गत कही ना जाए। जिन्हों ने गुरु के भाणे नूं मन्निया, गुरु की गल नूं मन्निया, जिन्हों के हुक्म नूं मन्निया, उन्हां दी गति किन्नी हो सकती आ, भाव पहुँच। हुण गत का समझ नहीं ना आई शब्द आपां नूं, समझ आ गई। गत का मतलब गति, मतलब पहुँच। एक हिंदू मत में गत शब्द वरतिया जाता है। साडे फलाने बुढ़े की गत नहीं हुई, गति नहीं हुई। उस गत का अर्थ है जीव का परमेश्वर विच पहुँच जाना। कहो सतनाम श्री। सैंस मुताबक गति शब्द मन्निया जाता है। एक गड्डी की रफ्तार किन्नी आ, इनू असी पंजाबी विच गुरमुखी विच गति कहने आ, रफ्तार नूं, पहुँच नूं, चाल नूं। तां उन्हां दी परमेश्वर दे विच पहुँच हो जाती आ, परमेश्वर विच मिल जाते हैं। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। जे कोई उन्हां दे बारे कह देवे भी इहो जे होणगे, वो उदों भी वध निकले आउण ते फिर पछताउणा पैंदा, यार घट कह बैठे। कहो सतनाम श्री। मनण वालियां दे बारे सतगुरां ने बड़ी वडियाई दिती। मनण वालियां नूं सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी की गल करिए तो भाई साहब भाई गोपाला जी जिस वेले जपजी साहिब का पाठ सुणाउंदे आ तो इस बाणी का मुल भी दसदे आ। पातशाह का बचन है जपजी साहिब विच कि ना तो बाणी का मुल है, ना बाणी पढ़न वालियां का कोई मुल है। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारीए अमुल भंडार। ये दोने ही बेशकीमती है, अमोलक हन। ते भाई साहब भाई गोपाला जी दे कोलों जपजी साहिब का पाठ सुन के सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी सोचन लगे भी इनू की देवां। भेटा देनी बनती है ना, इनू हुण मैं इहदे वट्टे की देवां कि बाणी का सत्कार हो जाए। सोचन लगे मात लोक का राजा बना दिए। नहीं, थोड़ा है, राजे तो मर जाते हैं, बाणी तो अमर करती है। फिर सोचा भी इंद्र की पदवी दे दिने आ। कहने इंद्र भी कई बारी मरदा जमदा है। जिस तरह एक बारी रामचंद्र अपने गुरु कोले बैठा और उहदा गुरु जिहड़ा है कंध उत्ते चढ़ रहे कीड़े नूं देख के हसी जांदा। कीड़ा चढ़दा, गिटक चढ़दा, डिग पैंदा, फुटक चढ़दा, डिग पैंदा, डिग पैंदा, बार बार। रामचंद्र पुछन लगे, महाराज ये की कारण है, तुसीं इहनूं देख देख के हसी जाने हो? कहंदे रामचंद्र ये पता कौन है? नहीं महाराज, ये इंद्र देवता है। ये कई बारी इंद्र की गद्दी नूं भोग चुकिया है ते अपनियां गलतियां करके नरकां दा कीड़ा भी बनया होया। तुहानूं पता इंद्र की गलती दा? गौतम तपे दे घरे गया सी, कोई सतन गलत सोच लेके गौतम तपा अहलिया इस्त्री तिस देख इंद्र लुभाया। कहंदे अपनियां गलतियां दे कारण यह उस पदवी तो डिग पिया, हुण कीड़ा बनया होया, हुण वापस उत्थे जाना चाहुंदा। तो गुरु हरगोबिंद साहिब सोचिया कि नहीं, इंद्र की पदवी किहड़ी पदवी है, गुरबाणी तो अमर करदी है। तो फिर सतगुरां ने अखीर इहो ही सलाह बनाई भी इनू गुरता गद्दी का मालक बना दें, दोहां लोकां दा, दोहां जहानां दा मालक ही बना देने। क्योंकि हरि दे प्यारे हरि विच ही मिलणगे ना, उदों घट नाल तां सरदा ही नहीं। हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जाणो मानस देहा, उदों घट नहीं। जिहड़ा पूर्ण उतर गया, चढ़ गया तो मेवे खाएगा। भगती जिहड़ी है खंजूर की तरह लम्मी है,
जे बंदा प्रवान हो गया तो फिर परमेश्वर का रूप हो गया, जे डिग पिया तो फिर टेढ़ियां जूना तैयार है। कहो सतनाम सी। जो ग्रह करे ता धर्म कर, नहीं तो कर बैराग। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपाग। परमेश्वर की भगती ऐसी है। खैर हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सलाह बनाई भी इस नूं जपजी साहब पूरा हो जाण दिओ, श्लोक रह गया, आपां इहनूं गुरता गद्दी ते बिठा दिंदे आ। इन्ने प्यार नाल बाणी सुनाई आ। और सियाणिਆਂ ਦਾ कथन है, मजदूर ਦਾ मुड़का सुੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਘਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਇਹਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲੇ ਆਸਣ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੱਲ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਸੀ 5, 4 ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਸ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੁਰਤ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਖੋਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜਾਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੋੜਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ 5-7। ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛਪਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬਾਣੀ।
गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह कहते भी मंजी अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप नूं सिर ते कौन लऊगा। सारे चुप कर गया जी, पता नहीं। नहीं फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप नूं अपने सीस ते कौन लैके चलूगा। कहने जी सोनू ही पता है, तुसी इसके मालक हो, तुसी ही लायक हो। गुरु अर्जन देव जी कहते इस दे लायक बाबा बुढ़ा है। क्यों महाराज? क्योंकि मैं तो कीती है 4 गुरुआं ने दर्शन। क्यों? गुरुआं ने कदे भी खुद नूं गुरु नहीं कहागा। अगे जाके संगत ने मनिया, मनना चाहिए, पर आप कदे भी नहीं कहा कि मैं गुरु हाँ। इस करके गुरु अर्जन देव जी कहते मैं तो 4 गुरुआं दे दर्शन किए आ, 3 गुरुआं ने, नाना गुरु, गुरु रामदास जी और गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, और हुण खुद गुरु है। पर गुरु नानक के दर्शन मैं नहीं किए, वो बाबे बुढ़े ने किए है। बाबा बुढ़ा 5 गुरुआं के दर्शनों का मालक है। इस करके ये सेवा बाबे बुढ़े नूं देवांगे। तो बाबा बुढ़ा जी के सीस ते सवारा किया बाणी का। को सतनाम सी। सच जाणिओ अज जदों कोई गुरु घर दे विचों महाराज सरूप लैण जांदा है ना, तो सिੱਖੀ ਤਾਂ ਕੀ सिर ते केस भी नहीं होंदे, ते खेस ਤਾਂ ਕੀ पग भी नहीं बन के, परना रमाला बन के तुर जाते हैं, रुमाल बन के तुर जाते हैं। को सतनाम श्री। गुरु साहिबां ने सानू गुरबाणी दे सत्कार की किड्डी वड्डी साखियां बना बना के सिक्ख्या दी है भी साखियां पढ़ के तेने याद आ जाऊगा भी आह गल हुई सी उत्थे, आपां घट्टो घट्ट उहे जे हो जाइए। सावत सूरत 5 बंदे भी इकट्ठे नहीं होंदे मैं सरूप ले जाण वास्ते। को सतनाम श्री। दस्तारां वाले एक कहा जा तू वग जा नाल, तू वग जा यार मैं होर काम करदा। एवें समझदे ए काम नूं, पर गुरु साहब ने वडियाई दित्ती। बाबा बुढ़ा जी नूं वजीर बना के गुरु हरगोबिंद साहब ने वडियाई दित्ती। भाई गोपाला जी नूं किड्डी वड्डी वडियाई दित्ती। भावें कि गोपाला जी का ख्याल भी सही है, पर हरगोबिंद साहब जी ने फिर भी घट नहीं छड्डिया। उन्हां नूं घोड़ा भी दिता सोने की काठी वाला, और बहुत सारी माया बस्तर आदि दे के उन्होंने नवाजिया। इस करके जिहड़ा गुरु दे भाणे भी चलदा उन्होंने वडियाई मिलती है। कहो सतनाम श्री। सतगुर कै भाणे जो चलै तिस वडियाई वड्डी होए, हर का नाम उत्तम मन वसै, मेट न सकै कोई। ते जिन्होंने गुरु देवे उन्होंने तो कोई खो नहीं सकता। किरपा करे जिसे अपनी, ये वडियाई मिलती है गुरु परमेश्वर की किरपा नाल। जिन्हां ते उहदी किरपा हुंदी आ तिस कर्म प्राप्त होए, उन्हां दा कर्म बनदा पहला, जिन्हों परालब्ध कहने आ। पहला गुरु कर्म बनवाउंदा है ताकि कर्म के मुताबिक ही अगे सेवा जां बख्शिश मिलनी आ। इहदे बारे लिखिआ बाणी च भला की लिखिआ है? आपे सेवा लायन, सेवा ला के कर्म बनाउंदा भी तू सेवा करया कर। गुरु अंगद जी ने सेवा ला दी, पुरखा सानू ब्यासा तो पानी लिया के इशनान कराया कर। उन्होंने सेवा की। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आपे आपे सार करे। सेवा दे बहाने बख्शिश करनी हुंदी आ। को सतनाम श्री। क्योंकि मिलना कर्म का फल है। गुरबाणी ने इस गल नूं भी क्लीयर रखना है। तो जदों सिख गुरु के भाणे भी चलदा होया किरत कर्म करदा चंगे, तो फिर अगे सतगुर वडियाइयां भी दिंदा। को सतनाम श्री। तो मेरे प्रीतम जी कहते किरपा करे जिसे अपनी, तिस कर्म प्राप्त होए। नानक कारण करते वस है। की ते किरपा होनी आ, वो किरपा का कारण की बनना, ये परमेश्वर दे वस है। आपे सेवा लायन, वो सेवा लाउंदा है, सेवा दे बहाने बख्शा करदा है। आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आपे आप ही सार करे।
सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हउमै विचों जाए। प्रीतम जी कहते नानक कारण करतै वस है, गुरमुख बूझै कोय, महला तीजा। अगे देखो हुण भाई की कारण है, किवें कर्म बनता है, किवें कर्मां तो बाद फल मिलता। महला तीजा, कर्म बनूगा नानक हर नाम जिनी आराध्या, आन दिन हर लिवतार। भाई गोपाला जी तरह लिवतार एक लिव ला के, जिन्हां ने अमृत वेले उठ के हरि दे नाम का सिमरन किया, आन दिन बिना नागा पाया। एक दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बिना नागा पाया लगातार। लिवतार मतलब लगातार, लिव का मतलब ध्यान, तार का मतलब तेल की धार वांगू, जिमें लगातार है, टुटदी नहीं, टुटदी है तो खत्म होने तो टुटदी है ना, विचाले नहीं टुटदी। इस तरह आन दिन हर लिवतार ते जिहड़ा इदां दा जीवन बतीत करदा है, गुरु दे भाणे विच रहिंदा होया सिमरन करदा है, नाम जपदा है, सेवा करदा है, फिर की हुंदा है, फिर उहदे घरे सारियां सहूलतां पातशाह भेज दिंदा है। माया बंदी खसम की, बंदी इस्त्री, बंदा मनुख, बंदी इस्त्री। ये जिहड़ी माया है ना, लक्ष्मी है जिहड़ी, वो परमेश्वर दी इस्त्री, माया उहदी लक्ष्मी है। उन्होंने नरैण कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। ये माया बंदी खसम की, तिन अगे कमावै कार, माया उन्हां दी सेवा करन आउंदी आ। रिद्ध सिद्ध नावै की दासी, जिथे सेवा सिमरन भजन बंदगी की जाती है, उत्थे तां माया सेवा करती फिरदी है, झाड़ू मारती फिरदी है। कहो सतनाम श्री। हुण तुसीं कहोगे माया किहड़ा झाड़ू मारदी आ? अज जो संगत जिहड़ी आपां भी शरीर करके गुरु की माया ही हाँ, आपां गुरु के चरणों भी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के प्यारिਆਂ की आपां सेवा करते हाँ, तो मानो वो माया तो काम लै रहा है। साडा शरीर माया है, अगे फिर असी सेवा करांगे, सानू भी उहदा फल मिलना, फिर साडे अगे भी माया सेवा करूगी। गुरु नानक देव जी की अगे माया सेवा करती है, अंगद जी ने सेवा की तो माया उन्हां दे चरणों च भी आ गई। अमरदास जी ने सेवा की तो उही मछवी, उही लक्ष्मी, उही माया, उही संगत गुरु अमरदास जी की सेवा च भी हाजिर हो गई। को सतनाम श्री। भाव सारी सृष्टि माया है, माया केवल पैसा नहीं, पैसा भी वाधू आ। गुरु घरां दे विच माया की सेवा करने वालियां दा भी कोई अंत नहीं। ये परमेश्वर की बंदी है, माया बंदी खसम की। माया केवल नोट नहीं है, धियां पुत्र सब कुछ माया ही है। ये साडे शरीर बाडियां ये माया तो बने हुए हैं। इस माया अंदर उत्साह पैदा हुंदा, फिर उन्हां गुरमुखां की संगत करन वास्ते, सेवा करन वास्ते, जिहड़े परमेश्वर का नाम जपदे ने। प्रीतम जी कहते महला तीजा, नानक हर नाम जिनी आराध्या, आन दिन हर लिवतार, माया बंदी खसम की, तिन अगै कमावै कार। ते परमेश्वर होर की करदा? केवल इत्थे रह गया काम? अगे चलीए आपां, एक छोटी जी गल याद आ गई। नारायण ते लक्ष्मी दोनों की आपस में गलबात हुई। नारायण जी कहते साडे भगत तकड़े आ, लक्ष्मी कहती साडे भी तकड़े आ। कहते चलो देख लैने आ। कहते चलो। लक्ष्मी कहती पहला मेरे भगतों को चलना है। कहते चलो। एक पिंड में आए, खूह ते आके बैठ गए भेस बदल के। रस्ते चो कराही टप्पिया। कहते भाई साहब गल सुनियो। हाँ जी। वो इत्थे एक सेठ आ लखी शाह। हाँ जी हाँ जी हैगा। उन्होंने भेजिए, उन्होंने कहो भी जी देवी नूं तू मनदा वो तैनूं मिलन आई आ, खूह ते बैठी आके मिल। वो बेचारे ने जाके घरे सुनिया दिता। वो लखी शाह हाँ भाई, वो तेरी देवी माता जी नूं तू मनदा है? हाँ हाँ, वो तैनूं मिलन आई आ, उत्थे खूह ते बैठे न।
कहना बाई यार हाँ यार वापस जा। क्यों? सुनेहा दे के आ भी मैं परसों आऊँगा, मैं थोड़ा बिजी हाँ। कहो सतनाम श्री। वो बेचारा फिर मुड़िया, कहना जी परसों कहना आऊँगा। चलो कोई गल नहीं। 3 दिन उड़ीकिया, तीजे दिन आया, जय माता दी जय माता दी होई। नारायण नूं गुस्सा आ गया भी अपना आराध्य अपना पूजन वाला आवाज़ मारे तो बंदा कहे परसों आऊँगा। जिवें भाई जोगे नूं सुनेहा दिता, जोगिया जिथे बैठा जो करना छड्ड के आ जा, उस वेले तुर पिया हो। तो तू भाई 3 दिनों बाद आया, की गल? कहना जी बस महाराज की करिए, बिजी इन्ने आ, काम ही इन्ने वधे होए आ। किवें? बस जी लखां च ही काम चलदा, ताइयों लोग मैनूं लखी शाह भी कह दिंदे आ। टाइम कढ़ के आया। पातशाह कहने चंगा अज तो तू करोड़ी मल होएगा। कहो सतनाम श्री। काम तेरा करोड़ा ही चलूगा। वो शाह भी खुश, ये अज्ञानता वैसे, वो सेठ भी खुश ते माता भी खुश होती देवी भी महाराज ने गुस्से में आके तो सारा कुछ खोया नहीं गा, बल्कि इनू होर भी वड्डा करता माया के रूप च। वो चलिया गया। देवी पूछती है महाराज की गल, तुसी इहनू कोई लेट आउण करके सज़ा नहीं दी? कहते सज़ा ही आ भलीए मानसे, हुण तां निकल आया तेरे दर्शनां वास्ते, निकल काम चों। हुण तू आवाज़ां मारदी नहीं, हुण नहीं आ सकदा, जिन्ना मर्जी रौला पाई जाइए। फस गया 99 के चक्कर च। 99 फिर बंदा 100 बनाउंदा, फिर बलने शुरू हो जाते हैं, फिर 99 बनते हैं, फिर 100 बनाउण की कोशिश करदा उहनूं। ये 99 का चक्कर आ। नारायण कहते हुण चल तैनूं मेरे भगतां नाल मिलावां। ते जदों नारायण ते लक्ष्मी एक नामदेव वर्गे भगत दे घरे गए, घर च गरीबी आ। ये बड़ियां गुझियां रमजां महापुरुषां दियां। गरीबी दे विच रब चेते आउंदा है। कृष्ण अपनी भूआ नूं कहना, भूआ मंग लै जो मंगना, मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ। कुंती पांडवां दी मां, वो कहती महाराज बस दुनिया भर की गरीबी मेरी झोली च पा दिओ। कहते भलीए मानसे, दुनिया भर दे कहते दुख मैनू दे दिओ। वो कहते दुनिया सुख मंगदे दुख मंगे। कहती दुखों में तू चेते आएगा, दुख नेड़े नहीं लगणगे, सुखों में तू भुल जाएगा, दुख दुखदाई करनगे। कहो सतनाम श्री। इस करके भगत दे घर गए, भगत नूं पता लगे परमेश्वर आए आ, सब कुछ छड्ड के अगे आ गया, हथ बन के खड़ा है, चरना थले अखां विछातियां। अखां विछाउण दा मतलब जो कोई घर आवे उन्होंने सत्कार नाल वेखना ते मिलना ते प्यार दे नाल बिठाउणा ते जल पानी छकाउणा। अखां विछाउण दा मतलब यही है। सत्कार किया, प्यार किया। जिहो जिहा घरे पलंगा सी जो तो उन्ना की कर सकते हैं ना। जे तू किसी ने देही मेरे साहबा क्या को कढ़े गहना नहीं तो फिर जिन्ना दिता उन्ना क वरत लिया। बिठाया, जल पानी छकाया, बड़ा आनंद आया। सुबह शाम गप्फा छकदे आ, भगत नाल भगती दीयां गल्लां हुंदियां। 5-4 दिन रहे परमेश्वर उहदे कोल ते तुरन लगे। लक्ष्मी का भी जी लग गया, उहदा भी लग गया। 5वें-6वें दिन कहने चंगा भगत जी चलते हैं, पर मैं तेनू पुछदा भी कोई तकलीफ तो नहीं, किसी तरह का दुख तो नहीं गा, नाले गरीबी च है। कहना जी कोई दुख नहीं। नहीं फिर भी कोई है तो दस दे। कहने हैगा, एक हैगा। कि करे करे महाराज सिमरन करदा मैं, या गां रखी आ दुध वास्ते, जो खेत खूत जाना पैंदा हरा चारा लियाउण वास्ते, उदों ना सिमरन टुट जाता है। सिख हमेशा लगातार सिमरन ही मंगदा है महाराज तो, बाकी समान तो आप ही आउणा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, आन दिन हर लिव तार, ते माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे कार। भगत जी कहने महाराज बाद जदों यह गां की सेवा संभाल च ना सिमरन टुट जाता है, वो कहने चंगा गां मर जूगी। इहो जे कौतक मरदाने ने बाबे नानक दे भी देखे, ते ये लक्ष्मी ने नारायण दे वेखे। वो कहनी वाह महाराज, वो सेठ ने थानू चाह नहीं पुछी, पानी नहीं पुछया, जय माता दी कह के सारता, उन्होंने लखां च करोड़ां च करता।
ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਾਂ ਵੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮਝਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਆਪਣੇ ਨਰੈਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਮਾਨਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਕਿਲੋ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖੜ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ ਤਨ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ। ਬਸ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਾਤਾ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਲਾਲਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਵਿਕਾਰ। ਗਰੀਬੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 1.25 ਕਿਲੋ ਗਰੀਬੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਪਾਈ ਆ ਗਰੀਬੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 1.25 ਕਿਲੋ ਗਰੀਬੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਲਾਲਚ, ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਕਾਮ, ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਕ੍ਰੋਧ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੋਹ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਲੋਭ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। 5 ਵਿਕਾਰ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਹੋਈਏ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਮਾਰੈ ਜਮ ਜੰਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੰਦਾਰ ਜਿੰਦਰੇ, ਜੰਦਾਰ ਸੰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨੀ ਭੌਜਲ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਔਗਣ ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ। ਉਸ ਗੁਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
अजे दुनिया ना न्याय करे ना करे न्याय, पर वो न्याय करदा फिर तैनू चिंता कादी है सिखा, तू फिक्र ना कर। काड़ा अंदेसा क्यों कीजै, जा ना ही अधर्म मारदा, सच्चा साहिब सच न्याओ, वो आप सच्चा है, ओदा न्याओ सच है। पापी दर हारदा, पाप करन वाले हार जाते हैं, नाम जपन वाले जित जाते हैं। सुखी वसे मसकीनियाँ आप निवार तले, वड्डे वड्डे अहंकारिया नानक गर्भ गले। सलाह वो भगतों कर जोड़, ताते अखीर ते चौथे पातशाह जी सानू सलाह दिंदे ने, भगतों दोने हथ बन के उस परमेश्वर की सिफत करिया करो। को सतनाम सी सलाहे वो भगतों कर जोड़, हर भगत जन तारदा, वो अपने भगतां नूं हमेशा ही तारदा आया। प्रीतम जी कहते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया। जा नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छड़ाया। इन्ना भरोसा इन्नी प्रतीत गुरु साहब सानू परमेश्वर ते गुरु ते करन दी सलाह दिंदे हैं। बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने हाजरियां लवाइयां जी। मोलदियां ने एक अखर बाद घट हो जाते, सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।